हाँ बेटे, आज अपना टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬੇਟੇ ਨਿਕਾਲਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੈ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का असी फॉर्मूला उत्थे कीता सी हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये बेटे आपां ने फॉर्मूला कीता सी, लेकिन हुण आपां ने +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹਾਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੈ ਬੇਟੇ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 डिटर्मिनेंट। ये बेटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ आ जाएगा। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਰੋ ਔਰ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਕਾਲਮ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਟੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਪੋਜ਼ -30 ਸਕੁਆਇਰ ਯੂਨਿਟਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 30 ਸਕੁਆਇਰ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ। ठीक हो गया जी। एक तो ये चीज़ होगी कि आंसर हमेशा आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। सैकेंड बेटे वो गल है कि सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ ऑलरेडी गिवन। ठीक है, पहला बेटे क्लीयर है ना, आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। पहला पॉइंट का ये नोट कर लो। दूसरा पॉइंट बेटे ये है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी सानू गिवन है, कोई वैल्यू सानू गिवन है, ठीक, तो उसनों तुसी की लेना है, ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੈਟ ਟਰਾਇੰਗਲ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੈਟ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸਿੰਪਲ, ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ਏ ਟਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ 12 ਸਕੁਆਇਰ ਯੂਨਿਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੈਟ ਟਰਾਇੰਗਲ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪਲੱਸ -12। आगे बेटे समझ, ये ध्यान रखना हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो गिवन है तो तुसी बेटे दो केस बनाने ही बनाने हैं। ओके जी, ओके। अच्छा, एक देखो थर्ड पॉइंट, अगर मेरे कोल ये पॉइंट्स नॉन कोलीनियर है तो ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है, उसका एरिया भी होएगा। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलीनियर हो जाए, मतलब ये पॉइंट सपोज पहला इत्थे आ गया, फिर इत्थे आ गया, और फिर की हो गया स्ट्रेट लाइन च आ गए, तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन च आ गए, तो ट्रायंगल ख़त्म हो गई। मतलब कि ऐसा ट्रायंगल इत्थे रह गया जिसका एरिया कितना है, 0 है। तो अगर पॉइंट्स कोलीनियर हो जान तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होएगा, 0। तो ये कंडीशन किसकी बन गई, ये कंडीशन किसकी बन गई कि इफ़ 3 पॉइंट्स आर व्हाट, कोलीनियर। इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलीनियर तो फिर की होएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटे की होएगा, 0 होएगा। सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बेटे इस फोर्थ टाइप का क्वेश्चन आप देख लें कि तुहानू याद होएगा +1 ਦੇ ਵਿੱਚ अगर साडे कोल एक पॉइंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट है x2 y2, और ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਸਲੋਪ y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਅਪੋਨ x2 ਮਾਈਨਸ x1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ y ਮਾਈਨਸ y1 ਇੰਟੂ ਸਲੋਪ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਸਲੋਪ ਇੰਟੂ x2 ਮਾਈਨਸ x1। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ passing through 2 points ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ x1 y1 ਔਰ x2 y2। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ x1 y1 ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟੇ ਹੈ b x2 y2। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ xy x3 y3 ਕਹਿ ਦੋ ਜਾਂ xy। ਠੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੇਟੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਮੀਨਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟੇ ਦੱਸਿਆ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ x1 y1 1 x2 y2 1 xy 1 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ x ਐਂਡ y ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇਹ ਜੋ ਚਾਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਦੱਸੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕੰਸੈਪਟ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਟੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, find the area of triangle whose vertices are 3 8 minus 4 2 5 1। तो area of triangle ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਫ ਕਿਸੇ x1 y1 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये डिटर्मिनेंट जो है अगर आप निकाल लिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो बेटे फर्स्ट जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 8, इतने 1 लिख लो, इतने बेटा -4 2 1 आ गया और इतने बेटा क्या आएगा 5 1 1 आ गया। राइट, हम बस डिटर्मिनेंट बेटे कर लिए हाफ और अंदर डिटर्मिनेंट लिख लो जी। फर्स्ट रो नाल एक्सपेंड कर लिए। हाँ जी, किवें तुहानूं दस्सिया है, जिन्होंने पिछला लैक्चर बेटे अटेंड नहीं किया प्लीज़ अटेंड कर लियो। इत्थे तुहानूं दस्से सी ना, इत्थे प्लस लिख लिया करो, इत्थे माइनस और इत्थे प्लस 3, इत्थे -8 और इत्थे बेटे +1। अगे हुण की करना अपने 3 जिस रो दे विच है वो रो कैंसल आउट कर दो, कॉलम कैंसल आउट कर दो, की बचिया 2 1 1 1 है ना। तो उन्होंने करांगे 2 1s दा 2, जो प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाए -1 × 1 इज़ 1। उस तो बाद -8, फिर 8 इस रो नूं कैंसल कर दो, ए वाला कॉलम कैंसल कर दो, की बचिया -4 एंड 1 तो 5 एंड 1। -4 नूं 1 ना करो मल्टीप्लाई, -4 माइनस जो प्रोडक्ट हो जाता है -5 × 1। ठीक है बेटा, क्लियर है। फिर 1 × ए रो और ए कॉलम कैंसिल कर दो, की बचा बेटे -4 1, इन्हों मल्टीप्लाई करो पहला, -4 माइनस ऑफ 10, दिस इज इट। एरिया आ गया जी, हाफ 2 - 1 इज़ 1, 3 × 1 इज़ 3, then -4 - 5 -9 × -8 72, then 4 माइनस द है -4 - 10, ये बेटे कितना हो गया -14 × 1 -14।
हाफ 75 माइनस 61 61, तो 61/2 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ गया बेटे, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। क्लियर है बेटा? गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग ए 1,3 एंड बी 0,0 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो इसका बेटे तुहानूं मैं की आइडिया दिता सी, देखो जो फस्ट पार्ट है उसका सोल्यूशन आप कर लगे आ कि तुसी ए ले लो 1,3, बी आ गया 0,0 और कोई पॉइंट इस दे उपर सी इत्थे ले लो, इत्थे ले लो, बस एनी पॉइंट लाइंग ऑन इट, उसनों बेटे की ले लो एक्स वाई, ठीक है, कोई पॉइंट से ले लो, राइट। तो लेट सी बी एनी पॉइंट ऑन ए बी और सी दे कोऑर्डिनेट्स की ले ले बेटे आपां ने एक्स वाई। तो हुण ए बी एंड सी दे आर वॉट कोलीनियर, जेडे बेटे इक्को लाइन च पॉइंट्स उन्होंने कहने असी कोलीनियर। तो एकदम साढ़े माइंड फिर की आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो बनेगी वो क्या होएगा 0, कोलीनियर पॉइंट्स तो जी ट्राइंगल बनती है उसका एरिया 0 होंदा है। तो दिस इंप्लाइज हाफ बेटे फॉर्मूला जो ऊपर आपने लगाया एरिया ऑफ ट्राइंगल वास्ते, हुण वो किस दे इक्वल ले लेना है, 0 दे इक्वल ले लेना है। तो x1 बेटे है 1 3, इत्थे 1 लिख लो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, दैन इत्थे लिख लो एक्स वाई, आ वाला एक्स वाई इत्थे 1, इत्थे 0 0, इत्थे 1। क्लियर है बेटा? ओके। अच्छा फिर देखो हुण अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 इधर जाके 0 ना मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो साढ़े कोल क्या बच गया, सिर्फ आ डिटर्मिनेंट बच गया, ठीक। इस डिटर्मिनेंट दे विच मैक्सिमम जीरोज कित्थे है, इस च ने, इसनू इस रो दे अबाउट खोल लो। हुण साइन दी प्रॉब्लम जिहड़ी हैगी उहनूं सॉर्ट आउट किवें करना सी, मैं तुहानूं दस्सिया सी कि इत्थे प्लस तो शुरू कर लिया करो, प्लस माइनस प्लस, जदों इत्थे आ गए हुण इधर शुरू हो गया प्लस माइनस प्लस। जे साइन कोई बच्चा भुल भी गया तो बेटे देखो ये थर्ड रो है ना, ये थर्ड रो है, ये A31 है, A31 3 ते 1 कितना होंदा 4, जदों ये ईवन आ जाए ना तो इत्थे पॉजिटिव साइन लगता, ठीक है, फिर ये नैगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जदों आप डिटर्मिनेंट लिखना है, ठीक, तो किमें होएगा, ये तो इधर 0 हो गया, हुण डिटर्मिनेंट अलॉन्ग थर्ड रो आप एक्सपेंड करना है। तो बेटे आ पहला आ तो 0 ही आ गया, ठीक है, माइनस आ भी 0 आ गया कि कुछ करने की लोड़ नहीं, प्लस 1 इंटू, जरा देखियो आह रो तो आ कॉलम कैंसल आउट कर दो, की रह गया, इसनों इस नाल मल्टीप्लाई करो y माइनस 3x, y माइनस 3x इक्वल्स टू ये है 0, ठीक है ना। अब बेटे पता लग गया ना, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, इधर 0 ना मल्टीप्लाई हो गया, तो बेटे बस आंसर आ गया, क्या है y माइनस 3x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 3x, ये बेटे इक्वेशन ऑफ ए लाइन आ गया। क्लियर है बेटा? ठीक है। हुण देखो इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड के इफ d है k, 0 इज़ ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज़ 3 स्क्वायर यूनिट्स। आ चेक करो बेटे, जदों एरिया गिवन होए, हुणे दस्सिया तुहानूं है ना 5 मिनट्स बैक, की दस्सिया बेटे कि जदों एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो तो साढ़े कोल कितने केस आएंगे, 2 केस आ जाएंगे। तो आप 2 केस किहड़े लवांगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बेटे कितना दिता है 3 स्क्वायर यूनिट्स है, तो प्लस माइनस 3 स्क्वायर यूनिट्स। फॉर्मूला लिखते हैं हाफ, ठीक, और ABD है, पहला ए दे कोऑर्डिनेट्स बेटे लिख लिए 1,3, इत्थे 1 आ गया, दैन बी दे कोऑर्डिनेट्स बेटे सी 0 0 1, ठीक है, और फिर डी दे कोऑर्डिनेट्स, डी कितना है देखो चेक करो, डी k, 0 k, 0 इत्थे बेटे 1, बिल्कुल क्लियर है, इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। फिर देखो 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा, इधर प्लस माइनस 6 आ गया बेटा। तो इत्थे हुण अलॉन्ग सैकेंड रो ओपन करिए डिटर्मिनेंट नूं, है ना, नवीं चीज़ सीखिए।
ਚਲੋ ਜੀ ਅਬਾਊਟ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਹੈ ਤੇ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ 2 ਔਰ 1 3 ਔਡ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ, 0 ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਲੱਸ 0 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ -1 -1, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਰੋ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਲਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। -1 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ A23, ਅਤੇ ਜਿਸ ਫਿਕਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। -1 ਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 1 0 K ਐਂਡ 3, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 1 to 0 ਇਜ਼ 0 -3K, डन है बेटा, ठीक है। तो -1 ਨੂੰ -3K ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, 3K +-6, then K equals to +-6/3, this implies K equals to बेटे दो वैल्यूज़ आ गई, +2 and -2, this is the answer, ठीक है बेटा, समझ लग गई। ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲੋਂਗ ਫਸਟ ਰੋ ਹੀ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਲੋਂਗ ਫਸਟ ਰੋ ਹੀ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਚਲੋ ਕਰੀਏ। ਇਹ 2 ਬੇਟੇ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, +-6 ਆ ਗਿਆ। ਅਲੋਂਗ ਫਸਟ ਰੋ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, +-+, ਹੈ ਨਾ, 1 -3 +1, ठीक है। चलो करिए, 1 अगर है आ कैंसल आउट कर दो, की बचा आह एलिमेंट्स 0 × 1 0 -0 0 -0, फिर 3 वाला ले लो जी, 3 वाला, ए वाला कॉलम कैंसल, ए रो कैंसल, 0 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ बेटे मल्टीप्लाई किया 0 माइनस K ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया K आ गया। फिर बेटे 1 वाला, दिस इज 0 -0, तो देखो बेटे क्लियर है बिल्कुल, आ 0 हो गया, 0 × 1 0, 0 × 1 0, -3 × -K, 3K equals to +-6, then K equals to +-2, ठीक है बेटे, क्लियर हो गया बिल्कुल। चलो ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਫਰਸਟ ਦੇ ਨਾ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ 2 ਪਾਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, ये दिते हुए है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेटे सब तो पहला आप ना फॉर्मूला जरूर वो लिख लिया करिए एक बारी, ठीक है। जो तुहानू प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तुसी डायरैक्टली जो है फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। करिए, हाफ बेटे पहला -2 -3 1, देन 3 2 1, ये फॉर्मूले वाला 1 है, -1, then -8 एंड then 1, ठीक है। चेक कर लो सारे। हुण इसनों आपां एक्सपेंड करांगे, अलॉन्ग फर्स्ट रो एक्सपेंड कर लो बेटा, हाँ जी, लेट्स डू इट, करिए बेटा, ठीक है। हाफ, चलो ये तुहानूं दस्सिया इत्थे प्लस माइनस प्लस, तो सब तो पहला प्लस मीनस कि जो जिस तरह है वही ले लो, राइट। -2, इस कॉलम नू इस रो नू बेटे इग्नोर कर दो, क्या बचा 2 1s 2, 2 1s 2, जो ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया -8, उस तो बाद नैगेटिव अगों की आ गया -3, उस तो बाद आ रो और ये वाला कॉलम इग्नोर कर दो, कि बचा 3 1 -1 1, 3 1s 3 माइनस इसमें इस तरह मल्टीप्लाई बेटे +1 बन जाएगा, माइनस और -1, क्लियर है बेटा। उस तो बाद +1, जिस रो दे विच यह एलीमेंट है उस नू इग्नोर कर दो, की बचा
3 और -8 इस बेटे मल्टीप्लाई कर लो -24 फिर माइनस इनू मल्टीप्लाई किया -2 आ गया उसनों की कर सकते हैं उसे बेटे +2 कर लो क्लीयर है ठीक है बेटा तो हुण देखो इसनों आप फाइनल कर दिए आंसर इस दा तो लेट अस राइट हाफ ये बेटे 2 + 8 बन गया 10 ਨੂੰ -2 ना किया 20 माइनस आ गया ये तो बेटे देखो +3 आ गया 4 × +3 12 इतने देखो बेटा कितना आया -22 × 1 -22 तो इतने बेटे हाफ -22 और -20 -42 + 12 -30 आ गया -15 आ गया तो बेटे तुहानू की दस्सिया सीगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा असी एब्सोल्यूट वैल्यू लैनी है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटे देखो तुहाडे कोल कितना आ रहा है -15 आ रहा है तो हमेशा आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा लैनी है तो 15 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर इज इट ठीक है बेटा नेक्स्ट देखो शो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर यूजिंग डिटर्मिनेंट्स तो वैसे भी तुसी देखो बेटे जो एग्जाम कुछ भी ना दिता होया तो तुसी डिटर्मिनेंट वैसे यूज़ कर ही सकते हो कि जो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होना चाहिए 0 तो आप इस तरह करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लें अगर 0 आ गया तो पॉइंट्स कोलिनियर शो हो जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का सब तो पहला तुहानू दस्सिया होया एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप फॉर्मूला लिखते होंगे ना हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 फाइन बेटा अच्छा चलो करिए हाफ हाँ जी बेटा ये लिख लो ए इतने बेटे आएगा b + c इतने 1 फिर सेकंड लिख लो बेटे कोऑर्डिनेट्स b c + a 1 और फाइनली c a + b 1 बहुत केयरफुली बेटे करो तो लेट्स डू इट करिए बेटा इसको एक्सपैंड करिए अबाउट रो 1 कर दिए रो 1 करना तो तुहानू की तरीका दस्सिया अगर बेटे प्लस माइनस प्लस मतलब पहला पॉजिटिव ए ले लो फाइन फिर माइनस ऑफ b + c लास्ट वाला +1 चलो लेट्स डू इट जो बेटे ए आप ए वाला ले लिया इसनों और इसनों इग्नोर कर दो की बचा इन्होंने मल्टीप्लाई कर लो c + a 1 ना मल्टीप्लाई किया c + a माइनस जो बेटे ए करेंगे a + b आ जाएगा पर याद रखना बाहर माइनस है तो तुहाडे वास्ते बेटे आ स्टैप मैं एक बार फिर रिपीट कर देना देख लो ठीक है अदरवाइज तुसी डायरैक्टली की लिखना है माइनस जो a + b आया डायरैक्टली -a -b लिखियो स्टैप सेव हो जाएगा ठीक बेटा फिर देखो -b + c है उस तो बाद b + c आ बेटे इग्नोर कर दो कॉलम तो आवली रो की बचा बेटे b आ गया 1 आ गया और c आ गया इधर 1 आ गया ठीक है आ वाला तो इग्नोर करता ना हम b 1 ना मल्टीप्लाई करांगे b माइनस कितना आ गया c ठीक है अगे बेटे 1 वाला ले लो आ वाला 1 वाला उस b किस तरह मल्टीप्लाई होएगा a + b नाल b a + b ना मल्टीप्लाई किया जी करिए b a + b ना मल्टीप्लाई करिए ab + b² ab + b² फिर माइनस अगे बेटे ब्रैकेट जरूर ब्रैकेट क्यों पाई है ब्रैकेट इस करके पाई है बेटा जो ये इस तरह मल्टीप्लाई होएगा यू हैव गॉट मोर दैन 2 टर्म्स ठीक है c है c² + ac c² + ac क्लोज्ड ए पूरी ब्रैकेट जो है एरिया वाली क्लोज करता ठीक है हम बेटे करिए मल्टीप्लाई वगैरह सारा कुछ ओपन कर लिए लेट्स डू इट ए है बेटे बाहर c + a - b साइन चेंज करते ठीक है माइनस ए बेटे b + c और b - c तो फॉर्मूला तुहानू याद है a² - b² का प्लस इतने देखो बेटा 1 नाल मल्टीप्लाई कर दो किसी ने भी उन्हें तो वही रहना है
ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दो बेटा, दोनों नेगेटिव हो गए। और फाइनली बेटा देखिए सारा कुछ ओपन करिए, ए सी प्लस, ये बेटे कैंसिल हो गया, ए सी, ये बेटे आ गया माइनस ए बी, ये ब्रैकेट ओपन कर दो बेटा, साइन चेंज, ठीक। ये ब्रैकेट बार पॉजिटिव साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन उदा ही रहेंगे। ए सी माइनस ए सी ज़ीरो हो गया, ए बी माइनस ए बी ज़ीरो हो गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज़ीरो हो गया, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ज़ीरो हो गया। तो हाफ इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ज़ीरो आ गया। और उसने की किया सी, शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हैंस जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ज़ीरो आ गया, ए बी सी आर कोलिनियर। डन बेटा, समझ आ गया, गुड बेटे। जे तुहानू वीडियो अच्छी लग रही है तो सबसक्राइब बेटे जरूर कर लो चैनल नो, एंड डू शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स, उन्होंने भी बेटे दस्यो। हाँ जी बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट्स। तुहानू बेटे की समझाया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर गिवन है तो हमेशा कितना केस लेने हैं, 2 केसेस लेने हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट्स प्लस माइनस 4, ठीक है। इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ 2 ਪਾਰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਟਾ, तो मैं एक पार्ट लेना, उस कोऑर्डिनेट्स देते हुए हैं k, 0, नेक्स्ट है 4, 0 एंड 0, 2, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स बेटे देते हुए हैं, तो लेट्स डू इट। मेन इस बेटे आ सीगा कि 2 केस होंगे, तो लेट्स स्टार्ट। हाफ हम फॉर्मूला बेटे तुहानू आ गया, तो मैं डायरैक्टली लिख रहा k 0 इत्थे 1 आ गया, 4 0 1 आ गया बेटा, 0 2 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। और बेटे अगर तुसी पूरी वीडियो देखिए तो आइडिया हो गया होना है कि हाफ ने तो क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे आपां, ठीक। तो इधर प्लस माइनस 8 आ जाएगा, बाकी तुसी इसनों एक्सपेंड कर लो, ठीक है। चलो इसनों एक्सपेंड करिए, प्लस माइनस प्लस के, इसनों इग्नोर कर दो, ये मल्टीप्लाई कर लो, 0 इंटू 1 0 आ गया, माइनस 2 माइनस 0, इनू बेटे छड़ दो हम, बाकी इनू कुछ भी करने की लोड़ नहीं है, कुछ भी इस तरह मल्टीप्लाई कर लो उन्हें 0 ही हो जाना है, प्लस 1। हाँ जी बेटा 1 है, इसनों इग्नोर कर दो, क्या बचा 8 माइनस 0 इक्वल्स टू, ये बेटे 2 उधर ले गए सी, प्लस माइनस 8, 2k नेगेटिव वाला आ गया, माइनस 2k प्लस 8 इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। फाइन बेटा, तो हुण आपां 2 केस है साडे कोल, माइनस 2k प्लस 8 इक्वल्स टू पॉजिटिव 8 है, एंड सैकेंड बेटे की है माइनस 2k प्लस 8 इक्वल्स टू माइनस 8, एक पॉजिटिव 8 एक माइनस 2k। ये देखो बेटे 8 माइनस 8 0 हो गया, तो k इक्वल्स टू 0 अपॉन एनीथिंग बिकम 0, एक k की वैल्यू 0 आ गई। ये देखो बेटा माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 8, ये बेटे ट्रांसपोज किया माइनस 8, तो माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 16, तो k इक्वल्स टू माइनस 16 अपॉन माइनस 2, बेटे 8 आ गया। तो 2 वैल्यूज़ आ गई 0 एंड 8, ये बेटे आंसर आ गया। हाँ बेटे क्वेश्चन देखो होर कर रहे हैं, क्वेश्चन 4th है। बाकी क्वेश्चन तुसी बेटे इसके आप ट्राई करने हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चनस हैं। तो अगर तुसी ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ गए तो बाकी भी तुसी जरूर कर लोगे। तो कमेंट्स बेटे जरूर दस्या करो भी तुसी होमवर्क आप कर लिया या नहीं किया, ठीक। की वीडियो तुहानू हैल्पफुल लगी या नहीं लगी, कुछ भी है बेटे जरूर दस्यो। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग टर्मिनेंट्स। तो तुहानू की दस्या बेटे जिहड़ा पॉइंट है इनू ए ले लो 1, 2 नू, इसनू बेटे 3, 6 ले लो पॉइंट बी नू, और इस लाइन ते कोई पॉइंट ले लो सी अपने कोलों, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स ले लो। तो ए बी सी कोलिनियर हो गए, पॉइंट्स
ABCR कोलिनियर। तो बेटे जब कोलिनियर हो गए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, 0 हो गया। दिस एम्प्लाइज हाफ, लिखो जी एरिया ऑफ ट्राइंगल वर्टिसेस लिख लो 1, ठीक है 2, इतने बेटे 1 आ जाएगा, इतने 3 6 1 आ जाएगा, x y इतने 1। इतने कुछ बच्चों का डाउट होंदा है, कहते सर इसनों असीं अगे पिछे इसनों पहला लिख लीए। नो इशूज़ बेटे, लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो। ठीक है, तो हाफ 2 बेटे उधर गया 0 हो गया, मल्टीप्लाई हो गए। तो साढ़े को सिर्फ आ डिटर्मिनेंट इन्ना ही रह गया, इसनों असीं एक्सपैंड कर लेने अलॉन्ग फस्ट रो। तो तुहानूं फिर ट्रिक दसी हुई है भी इन्हां अगे साइन किहड़े पा लिया करो, प्लस माइनस प्लस, जो डिटर्मिनेंट ओपन करना है 1 -2 एंड +1। चलो 1 दे नाल देखो किवें मल्टीप्लाई होगा एलीमेंट्स नूं। आ वाले रो एक कॉलम इग्नोर करते, 6 1 6, फिर ये प्रोडक्ट पूरा हो गया -y × 1, तो 6 - y × 1 इज -y -2। 2 वाला रो बेटे इग्नोर कर दो, कॉलम इग्नोर कर दो, की बचा 3 1 और x1, 3 1 3 -x। फिर 1 वाला बेटे 1 वाला 3y - 6x इक्वल्स टू 0। दिस इज इट बेटा। अब पता लग गया ना, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 0 ना मल्टीप्लाई हो गया। बस इन्हें ओपन कर लो बेटा, -6 + 2x + 3y - 6x इक्वल्स टू 0। ठीक, जो प्लस माइनस बेटे टर्म्स हैं लाइक टर्म्स, उन्होंने कर लो सॉर्ट आउट। ठीक है, 3y - y 2y, 2x - 6x इज़ -4x, 6 - 6 इज़ 0। तो बेटे इतना आ गया 2y = 4x, दिस इम्प्लाइज y = 2x। ये बेटे स्ट्रेट लाइन आ गई पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। और ये लाइन पता कितों पास करेगी, इट विल पास थ्रू रीजन, क्योंकि इस कॉन्स्टेंट 0 है। ओके बेटा, फाइन। तो बाकी ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन है बेटा, बाकी क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ हैं, ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ हैं सेकंड पार्ट और ये 5th पार्ट देखो सेम है, कोई प्रॉब्लम ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आएगी। आप बेटे ट्राई करियो, ठीक है, गुड। फिर नैक्सट टॉपिक बेटे आप करांगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। जरूर ज्वाइन करो बेटे वो वाली क्लास भी। थैंक यू बेटा, थैंक यू।